Hello my dear student, very precious good morning to all of you. Myself Dr. Sanjay Singh, Subrat Singh Children Academy, Argupur, Kalan, Jaunpur. In previous lectures, I discussed detail about the male reproductive part of the angiospermic plants. हमने ये बातें आपको वहाँ पर डिस्कस किया था कि what is the male gametophytes, क्या होता है, what is the pollen banks, what is the pollen products in the last videos. Today, now we are going to start the female reproductive parts of the angiospermic plants. कि हम this is the fourth verse of the flowers के बारे में हम बात करेंगे. तो female reproductive parts that is known as the pistil, the pistils, megasporangium, and embryo sac pistils, megasporangiums or embryo sacs. So today now we are going to start the female reproductive part of the flowers that is known as pistil, megasporangium as well as embryo sac. हमने in previous lectures I have told you very detail how many whorls of the flower. हमने ये बात आपको बताया था कि 4 whorls present in the flower. The first whorl is known as calyx, second whorl is known as corolla, third whorl is known as androecium, and the last whorl is known as gynoecium. The last whorl is known as gynoecium. Gynoecium is the fourth whorls of the flowers. फोर्थ वॉल्स, किसी में आपको ये पांचवा वॉल्स भी हो सकता है, बट इन जनरल द फोर्थ वॉल्स ऑफ द फ्लावर दैट इज नोन एज गायनोसियम. गायनोसियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल. उसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? गायनोसियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल के भी नाम देते हैं. और ये हमने बताया था द पिस्टिल और गायनोसियम दे कंटेन्स मेनी कॉर्पेल्स. इसके पास क्या होते हैं? दे कंटेन्स मेनी कॉर्पेल्स एंड ईच कॉर्पेल्स कंटेन्स 3 important regions, 3 important parts. तो each corpel contains 3 important parts. The upper part is known as stigma. Middle parts of corpel is known as style, and the last parts that is known as ovary. Stigma, style and ovary. This is the 3 important part of the corpels. तो अगर हम इसके बारे में एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको अगर हम समझें तो here is the floral axis and in between the floral axis यहाँ पर क्या होता है? on above the floral axis corpels are present in here, and here is the stigma, here is the pedicel, here is the pedicel, here is the thalamus that is known as floral axis, thalamus, and here is the ovary, here is the style, and this is the stigma. Here the structure of pistils or corpel. तो अभी हमने बात बताया कि द गायनोसियम इट ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, उसको हम पिस्टिल के भी नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल. ये कौन सा रिप्रोडक्टिव वॉल होगा? इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स होता है. एंड दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स कंटेन्स मेनी कॉर्पेल्स, and each corpels
contains three important parts. The upper part is known as stigma, the middle part is known as style, and the inner part is known as ovary, and the floral axis, this is the very important part, that is known as thalamus, where all the carpels are attached here. जितने भी कार्पल है, either single carpels or many carpels, all the carpels they are attached with the floral axis, that is known as thalamus. And in the last portions of the pistil, that is known as pedicel. Pedicel is a type of ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये डंठल के जैसा होता है और आगे ये स्वॉलेन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा, दैट इज नोन एज थैलेमस, उसको हम थैलेमस का भी नाम देते हैं। अब ये बात आती है कि द गाइनोसियम्स और पिस्टिल्स और गाइनोसियम कंटेन्स सिंगल कॉर्पेल is made up of single carpel, that is known as monocarpellary, that is known as monocarpellary. If any pistils or gynoecium contains a single carpel, so that is known as monocarpellary. And second things here is the first, if the pistils, ये पहला हो गया, and second ये पहला हुआ, and the second, if pistil is made up of many carpels, that is known as polycarpellary. ठीक है, तो इन्होंने कहा है क्या हुआ है इसमें कि फ्लावर्स में जो होते हैं हमारा जो कॉर्पल्स, जो हमारा गाइनोसियम्स होते हैं, ध्यान देना प्लांट्स का, आइदर दे आर मेड अप ऑफ सिंगल कार्पेल्स, दैट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी इज ऑल्सो नोन एज सिंपल गाइनोसियम, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पिस्टल और सिंपल गाइनोसियम। सिंपल पिस्टल इफ the pistil contains many carpels, that is known as compound pistil, उसको नाम क्या दे रहे हैं, that is known as compound pistil के भी नाम से ये जानते हैं। तो ये दी चीज़ों को हमेशा याद रखने का कि ये carpels either single or many. I will discuss detail both the monocarpellary as well as polycarpellary with the help of diagrams. अभी हमने जो बात ये बताया कि अवर इन फ्लावर्स द कार्पल्स आइदर कंटेन्स ए सिंगल और मेनी, इफ द एनी पिस्टल्स और गाइनोसियम कंटेन्स ए सिंगल कार्पेल, दैट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी इज ऑल्सो नोन एज सिंपल पिस्टल और सिंपल गाइनोसियम. If any gynoeciums or pistils they are made up of more than one carpels, that is known as polycarpellary or multicarpellary. तो अब मल्टीकार्पलरी दे आर टू टाइप अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स. ये दो टाइप्स को होंगे मल्टीकार्पलरी. फर्स्ट इज एपोकार्पस एंड अनदर इज द सिनकार्पस. Apocarpus and syncarpus. If all the carpels are free with each other, that is known as apocarpus. Like Michelia. Examples: Michelia. आप ये देख सकते हो. Here is the multicarpellary apocarp. Here all the carpels they are free with each other.
मीन्स हियर द वन, एक जो ये आपको डायग्राम्स रिप्रेजेंट वन कार्पल्स, तो मेनी कार्पल्स दे आर प्रेजेंट इन ईयर बट दे डू नॉट फ्यूज विथ ईच अदर, ये आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ कार्पल्स इज नोन एज एपोकार्पस। इफ एनी गायनोसियम और पेस्टिल इज मेड अप ऑफ मेनी कार्पल्स, तो इस तरह के भी कंडीशंस आपको फ्लावर्स में मिलते हैं, दे आर फ्री विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज एपोकार्पस। व्हाट इज द सिनकार्पस में क्या होगा, if all carpels fused with each other is known as syncarpus. In here the simple diagrams are, they are multi-carpal, many carpels are present in here, but all the carpels they are fused with each other to form a single, ऐसा आपको दिखेगा कि सिंगल कार्पल के जैसा दिखेगा। बट वो एग्जाम्पल्स जो होगा आपका यहाँ पर, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लीजिए, सिनकार्पस, पाइपावर, ये इस तरह की कंडीशन, पपाया, इस सब में आपको क्या होता है, सिनकार्पस कंडीशंस आपको मिलते हैं, मीन्स ऑफ द कार्पल्स आर फ्री विथ। तो हम डिटेल में जब बात करेंगे तो ओवरी कंटेन्स मेनी चेम्बर्स और लॉक्यूल्स होती है। इफ यहाँ पर ऐसा इस कंडीशन में होगा, इफ ऑल द कार्पेल्स आर फ्री विथ ईच अदर, इट मीन्स वन कार्पेल्स रिप्रेजेंट वन लॉक्यूल्स आर वन चैम्बर, तो जितने इसमें आपको होंगे कार्पेल्स उतने चैम्बर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बट इफ ऑल द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल लॉक्यूल्स और सिंगल चैम्बर्स बनता है, बट कंटेन्स ए मेनी सीड्स। तो इस तरह की कंडीशंस में मल्टी कार्पली, मैंने कहा कि पाइपावर्स की बात हो या पपाया की बात हो, तो वहाँ पर भी आपको एक फ्रूट्स होगा, बस उसके अंदर मेनी सीड्स आर प्रेजेंट, इट मीन्स ऑल द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशंस फाउंड इन द मल्टी कार्पलरी, आइदर एपोकार्पस और सिनकार्पस। नेक्स्ट I will discuss detail in every part of the carpel. So first of all discuss on stigma. Here is the carpel. Carpel contains three parts. First is the stigma. Stigma is the upper part of the carpels. ये carpels का upper part होगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम आपको मैंने बताया था कि here is the upper part, here is the tube-like structure, here is the lower part, and inside them ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईयर, यहाँ पर ओव्यूल्स आपको मिलते हैं। तो हियर इज द स्टिग्मा, नेक्स्ट इज द स्टाइल, एंड द बेसल पार्ट इज नोन एज ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ ओव्यूल होता है। हियर इज द डायग्राम्स ऑफ कार्पेल, सिंपल डायग्राम ऑफ कार्पेल। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट। अपर पार्ट, ये अपर पार्ट होता है, इसको आप दूसरे कह सकते हैं लैंडिंग पार्ट, लैंडिंग पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, लैंडिंग पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन। इट मीन्स रिसीव द पोलन ग्रेन, रिसीव पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स को ये रिसीव करता है एंड facilitate to germination of pollen grain। pollen grain को जर्मिनेट करने की एक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा। The second parts that is known as style. The style, just below the style क्या करता है, tubular structure
connect ovary to स्टिग्मा। ये बीच का पार्ट होगा जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। एज वेल एज क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, आप मेल गैमीट यहाँ बोलो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू ओव्यूल्स तक ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉर्पल्स, that is known as style, and the third part that is known as ovary. This is the basal part, ये basal part of corpus, ये sphericals, इसको आप बोल सकते हो bulgate parts of the corpus। ये बेसल होगा, नीचे की तरफ होगा, बल्गड होगा, स्वॉलेन होगा, ठीक है। कंटेंस चैम्बर, कंटेंस मेनी चैम्बर। और ये जो मेनी चैम्बर्स होते हैं, मेनी चैम्बर्स और लॉक्यूल्स, ये मैंने कहा था कि स्पेस आर प्रेजेंट इन ईयर, मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ईयर, यहाँ पर होगा। और इसके अलावा इसमें कह रहा है कि इनर पार्ट कंटेन्स प्लेसेंटा, वहाँ पर क्या होगा, प्लेसेंटा इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स फ्रॉम वेयर, प्लेसेंटा ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, प्लेसेंटा इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स फ्रॉम वेयर ओव्यूल्स आर अटैच्ड, जहाँ से ओव्यूल्स अटैच होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज व्हाट, हियर इज द ओवरी एंड दिस पार्ट इज नोन एज प्लेसेंटा। ये द इनर पार्ट, जो इनर पार्ट ऑफ द ओवरी कंटेन्स, दिस इज द फर्टाइल पार्ट दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हेल्प आर प्रोवाइडेड इन न्यूट्रिशन टू ओव्यूल्स। ये क्या काम क्या है इसका, व्हाट इज द रोल्स, प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू ओव्यूल को ये देता है। देखो एक चीज मैंने कहा कि मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ईयर, चैम्बर्स का मतलब यू कट द सेक्शन ऑफ द ओवरी। अगर आप ओवरी का सेक्शन काट रहे हो तो इसमें इस तरह के आपको ऐसा कुछ दबा हुआ पार्ट्स यहाँ पर आपको ऐसे दिखेंगे, और ऐसे यहाँ पर बाइफर्केशंस हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ईयर, और यहाँ पर आपको ओव्यूल्स ऐसे अटैच हो सकते हैं। आइदर 2 चैम्बर्स और 2 लोक्यूल्स आर मेनी, ऐसे आपको भी हो सकते हैं कि आपको मेनी चैम्बर्स विच आर प्रेजेंट इन ईयर, यहाँ पर आपको ऐसे आपको मेनी चैम्बर्स दिखेंगे, और इनसाइड देम ओव्यूल्स और सीड्स आर अटैच्ड। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि मेनी लॉकुलर्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी के अंदर पाई जाती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको यहाँ पर होते हैं। इन जनरल ओवरी कंटेन्स सिंगल ओव्यूल्स, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा कि इन जनरल ओवरी कंटेन्स सिंगल ओव्यूल्स। इन जनरल यही होता है कि अगर एक में आपको एक ओव्यूल्स होता है, इफ द ओवरी कंटेन्स सिंगल ओव्यूल्स यहाँ पर होते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें आप देखो, वीट, राइस, ये सब सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर बिलोंगिंग टू मैंगो, etc. In general, if the ovary contains, is the first important point, if the ovary contains many ovules, ऐसा भी देखा जाता है। एग्जाम्पल्स पपाया, watermelons and orchids।
अगर इन 3 प्लांट्स को अगर आप देखोगे, इनके अगर फ्रूट्स को देखोगे तो इस फ्रूट्स के अंदर 1 फ्रूट्स होंगे, कंटेन्स मेनी सीड, मीन 1 ओव्यूल रिप्रेजेंट 1 सीड। अगर किसी भी फ्रूट्स के अंदर 50 सीड्स है, इट मीन्स क्या होगा, ये ध्यान देना कि ओवरी कंटेन्स 50 ओव्यूल्स। अगर 20 है 20 ओव्यूल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ देने का, अगर आप वीट देखो, राइस देखो या मैंगो, इनके जो फ्रूट्स में एक फ्रूट से ओनली 1 सीड्स आर अपीयर, वहाँ पर आपको दिखाई देती है, ऑब्टेन किया जाता है। इट मीन्स द 1 ओवरी कंटेन्स 1 ओव्यूल। दोनों कंडीशंस होते हैं, बोथ द टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट, बोथ द टाइप ऑफ ओवरी आर प्रेजेंट इन द नेचर्स। Single ovules present in each ovary or many ovules present in the each ovary. The some example mentioned in here. Next is the structure of ovules. ये कैसा है ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो अब हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम। तो पिस्टिल की बात हो गई। द सेकेंड दैट इज नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल, एज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। उसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे प्रोड्यूसेस ए सीड कि आता है। ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले इन 82% एंजियोस्पर्मिक plant contains anatropous ovule. Anatropous ovule contains anatropous ovule. Anatropous क्या होता है? ये हियर इज द सिंपल डायग्राम ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल्स। इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसा होगा, ये टाइप ऑफ ओव्यूल की बारे में बात जब हम करेंगे वहाँ पर और भी ओव्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ओव्यूल टर्न्स 180 डिग्री, ध्यान देना 180 डिग्री एंगल इन्वर्टेड, उल्टा होता है, इन्वर्टेड। जैसे अगर आपको दिखा जाए तो ये इस तरह से आपका उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड, ठीक है। इसको आप उलट सकते हो, इन्वर्टेड। माइक्रोपाइल क्लोज टू hilum. Micropyle close to hilum. Here is the micropyle. Here this parts that is known as hilum, and the elongated tubular structure that is known as funiculus or stalk. Here is the outer integument, integuments, inner integument, चला जा, nucellus, here is the some part of the micropyle close to the hilum, at the side most common types होता है। and this ovules categorize into 2 parts. इसके 2 parts में आप categorize कर सकते हो। the first part is known as stalk, and the another part is known as body. Stalk is also known as funiculus. Stalk is also known as funiculus. Here is the stalk. ये stalk होता है और इसके हेल्प से ही क्या करता है, वो जुड़ता है। तो यहाँ इसका व्हाट इज द रोल, इसका फंक्शन क्या होगा,
ovule attach to fertile part of the ovary, fertile part of ovary through stalk or funiculus। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताया गया कि ये जो पार्ट्स होता है, ये जो फ्यूनिकुलस और स्टॉक्स होते हैं, ये जो होता है एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि ये क्या होता है, ओव्यूल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड, ध्यान देना, इनसाइड द ओवरी के अंदर होते हैं, दे आर अटैच्ड विद द ओवरी। तो ये ओवरी से कैसे अटैच होते हैं, वो कौन सा पार्ट होगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट टू द ओवरी, दैट इज नोन एज फ्यूनिकुलस और स्टॉक बोलते हैं। क्लियर? तो ये पार्ट आपका ये हो गया। सेकेंड जो बात आ रही है बॉडी, तो बॉडी कंसिस्ट मेनी पार्ट्स। द फर्स्ट इज हिलम, सेकेंड इज इंटुगमेंट्स, थर्ड इज इंटुगमेंट न्यूसिलस, फोर्थ इज माइक्रोपाइल, फिफ्थ इज चलाजा, and the last is embryo sac, और फीमेल गैमेटोफाइट, इसी का नाम क्या देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक्स और फीमेल गैमेटोफाइट। तो हियर इज द एम्ब्रियो sac. Now I will discuss detail about one by one of the body part of the ovule. So first of all discuss on hilum. तो ये बात हमने क्लियर किया है कि most of the angiospermic plant, near about 82% of the angiospermic plant anatropous ovules are present. Anatropous ovules का मतलब ये होता है कि आपने देखा कि ओव्यूल्स टर्न 180 डिग्री एंगल से वो टर्न कर जाती है और उल्टा हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाएगा, ये इस तरह से इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि माइक्रोपाइल्स क्लोज टू द हिलम, ये माइक्रोपाइल और हिलम एक पास आ जाते हैं। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। फिर हमने बात बताया कि actually the ovules they are categorized into two parts. The smaller part is known as stalks or funiculus and the larger part is known as body parts or body of the ovule. What is the role of the stalks or funiculus? मैंने ये बताया कि ovules attach to fertile part of the ovary through stalks के वो attachment में help करता है। And what is the function of the body? The body contains following parts, many parts होते हैं। I will discuss detail one by one. Next, तो first of all discuss on hilum. पहला जो पार्ट होगा that is known as hilum. hilum का जो important part होता है, junction between funiculus and body, funiculus and body is known as hilum. Hilum is what? ये body parts हुआ, the total parts is known as body, ये body हुआ, ये body part of the ovule. तो junction of the funiculus, जहाँ पर इसका एक जंक्शन आ रहा है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गई है, तो दिस जंक्शन इज नोन एज हिलम। तो इट मीन्स कह सकते हो कि हिलम का रोल क्या होता है, फ्यूनिकुलस को बॉडी से अटैच कराने में हेल्प करता है। एंड दिस स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर अटैचमेंट साइट होता है, दिस अटैचमेंट साइट इज नोन एज हिलम। नेक्स्ट इज इंटुगमेंट। In mostly angiospermic plants, bitegmic
बाइटेगमिक का मतलब होता है टू इंट्यूगमेंट्स आर प्रेजेंट, आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट। ये दो इंट्यूगमेंट्स होंगे, आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट, outer integument and inner integument, that is known as bitegument. What is the role of the integuments? यहाँ पर क्या रोल होता है? प्रोटेक्ट न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, प्रोटेक्ट न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो दैट इज द सेकेंड लेयर, दैट इज नोन एज इंट्यूगमेंट्स एंड द थर्ड इज नोन एज चलाजा इज व्हाट? चलाजा इज द अपर पार्ट। या आपको देख सकते हो कि अपर पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स का अपर पार्ट होगा। वेयर, यहां पर क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट साइट वेयर इंट्यूगमेंट, जहां वेयर इंट्यूगमेंट्स आर डेवलप्ड, जहां से इंट्यूगमेंट का डेवलपमेंट होता है। तो आप ये देख सकते हो, तो ये चलाजा पॉइंट हुआ, एंड ईयर इंट्यूगमेंट्स आर डेवलप्ड इन ईयर। तो दिस पॉइंट, ये आपका चलाजा पॉइंट हुआ, यहीं से इंट्यूगमेंट की ओरिजिन हो रही है। तो दिस इंपॉर्टेंट साइट इज नोन एज चलाजा। उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम चलाजा बोलते हैं। तो चलाजा इज द अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स का अपर पार्ट होता है वेयर इंट्यूगमेंट्स आर डेवलप्ड। द फोर्थ इज नोन एज न्यूक्लियस। The nucleus contains mass of parenchyma tissue. They are diploid in natures. तो mass of parenchyma tissues, they are present in here, and here is the parenchyma tissue. ये this is the parenchyma tissue. यहाँ पर parenchyma tissue होंगे, और ये जो parenchyma जो टिश्यू होते हैं, they are diploid in nature. तो यहाँ पर क्या करता है? दिस इज द सेंटर पार्ट। ये क्या होता है? सेंटर पार्ट ऑफ ओव्यूल का ये सेंटर पार्ट होता है, इज द इंपॉर्टेंट साइड वेयर एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड, जहाँ पर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट्स आर डेवलप्ड। इट मीन्स क्या होता है? इन जनरल, ध्यान देना, इन जनरल कि इनसाइड द न्यूक्लियस सिंगल एम्ब्रियो सैक्स आर फॉर्म, एक ही बनता है। बट इन केस ऑफ सिट्रस वैरायटी, अगर वहां पर जब हम पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करेंगे, द वन ओव्यूल्स कंटेन्स मेनी एम्ब्रियो सैक, वहां पर मेनी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, मेनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो अलग बात है। इन जनरल ओनली वन एम्ब्रियो सैक्स आर डेवलप्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हम डिटेल में बात, जब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर ये बात बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं, इसमें सिंगल जो पैरेन्काइमा टिश्यू होंगे, सिंगल ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं, मियोटिक डिवीजन करेंगे, मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। इतनी मीन्स इसमें भी क्या होगा? 3 डीजनरेट ओनली 1 डीजनरेट हो जाएंगे, 3 डीजनरेट मेगास्पोर, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर that is known as yarn, they are converted into ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है। इट कंटेन्स डिप्लॉयड सेल्स, वहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स होंगी, दैट इज नोन एज पैरेन्काइमा टिश्यूज। द सिंगल पैरेन्काइमा टिश्यू दे आर डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूसेस से 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स।
आफ्टर दैट 3 मेगास्पोर्स और डीजनरेट, ये हम बाद में डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बात करेंगे। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट, micropyle is what? This is the type of pore or passage where integument absent, जहाँ पर इंट्यूगमेंट्स नहीं होता है, where इंट्यूगमेंट्स आर एब्सेंट, तो दिस पोर और पैसेज इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो हियर इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट एट। ध्यान देना कि ये ऊपर की साइड, अगर इन्वर्टेड करोगे तो ये सीधे ऊपर की तरफ रहेगा। तो ध्यान देने की बात होती है टिप ऑफ द ओव्यूल, यहाँ पर जो ये प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल, को ये टिप पर पाए जाते हैं। ये अभी हमेशा यह ध्यान देना कि ये उल्टा रहेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब ऊपर ये करोगे तो ये टिप पर हो जाएगा और ये चला जा क्या हो जाएगा, ये बेसल पार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे अगर आप कर दोगे तो अपर पार्ट हो रहा है, तो ये उल्टा हो जाता है, 180 डिग्री में वह टर्न कर रहा है। तो टिप ऑफ द ओव्यूल्स वेयर इंट्यूगमेंट्स आर एब्सेंट। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल का रोल क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ, ध्यान देना, जो ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ट्यूब्स, या ऐसा ट्रांसफर नहीं करना हो, इंटर ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इंटर ऑफ पोलन ट्यूब्स इनसाइड embryo sac through pollen tubes, ध्यान देना कि जब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की, जब बात करूंगा तो when the pollen grain deposited on the stigma of the female flower, पर जब वो डिपॉजिट होगा तो पॉलन जो ग्रेन्स होता है वो जर्मिनेटेड ऑन द स्टिग्मा, आफ्टर दैट पॉलन ट्यूब्स आर डेवलप्ड। पॉलन ट्यूब्स डेवलप्ड होते हैं और ये जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं इंटर इनसाइड देम, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड देम, ये इसके थ्रू ये एंट्री करती है, यहाँ पर इसके अंदर जाएगी ये पॉलन ट्यूब। तो ये एक ऐसा रीजन्स होता है जहाँ से इजिली पॉलन ट्यूब्स इंटर इनसाइड देम, वेयर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो हेल्प, यहाँ पर एक पैसेज देता है, एक पोर देता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब्स इंटर कर जाता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक्स, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक्स आर माइक्रोस्पोरेंजियम। एम्ब्रियो sac is also known as microsporangium। के भी नाम से हम जानते हैं, ये हमने पहले भी बताया था कि इनसाइड देम, मैंने पहले भी बोला था कि पैरेन्काइमा टिश्यूज, ये मास ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू दे आर डिप्लॉयड इन नेचर्स, 2n इन नेचर्स, ये 2n इन नेचर्स होता है विद द हेल्प ऑफ, ये बात हमने बताया, मियोसिस डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस देन कन्वर्टेड इनटू टेट्राड। द पैरेन्काइमा टिश्यू दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल that is known as 2n, and this megaspore mother cell show meiotic division, so meiosis then produces tetrad मेगास्पोर that is known as n। और ये जो टेट्राड मेगास्पोर्स होंगे इसमें मैंने बताया कि 3 मेगास्पोर डीजनरेट, ये जनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 मेगास्पोर्स डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक। तो
तो जो ये जो सारी प्रोसेसिंग की जो बात हम करूँगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, वहाँ पर हम डिटेल में बात करूँगा। तो ये जो एम्ब्रियो सैक्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। किसके अंदर पाए जा रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे थे। हियर इज द पैरेन्काइमा टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड into the megaspore mother cell. They are also diploid in natures. With the help of meiosis division then produces a tetrad megaspores का वो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये टेट्राड जो मेगास्पोर्स होते हैं इसमें 3 आर डीजेनरेट ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड ए एम्ब्रियो सैक। इसलिए कहा जाता है कि वन ओव्यूल्स कंटेन्स ओनली 1 एम्ब्रियो सैक्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स, एक ही बनता है। ठीक है, तो हियर इज द डिटेल डिस्कशन ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल्स। तो हमने ये बात बता दिया कि जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मी प्लांट कंटेन्स एनाट्रोपस ओव्यूल्स। एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड ओव्यूल्स, डाउनवर्ड एक्सिस होती है इनकी, 180 डिग्री का एंगल्स में होते हैं। और ये मैंने सीधा बनाया है, ये हमेशा क्या होगा? उल्टा जाएगा। तो इस चीज़ों को आप उलट के भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी में इन्होंने मेंशन भी किया, तो उसको आपको समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो मैंने कहा था कि जो ओव्यूल्स जो होते हैं कंटेन्स 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, one is the funicles and another is the body part. The body contains following parts. So thank you for watching this video. Have a nice day all of you.